National Book Trust of India. We are now going to publish this book in adapted version for primary schools and going to publish it in 48 languages, and we'll be distributing 100,000 books across the length and breadth of this country by November. We are a private company, zero debt company. We don't need to do what you see on the screen of publishing a sustainability report. Forget about publishing a BRSR report, which is mandated only for the top 1,000 market cap companies in the country. We have voluntarily published these reports, demonstrating our accountability that we would like to retain this place as we found it, and that is Bislery's Greener Promise. Before I end, I have a small... And to Mr. Deepak Sangvi, the CMD of Nuance Enterprises Limited. I'm going to request Dr. Vimal Katiyar, FSSI, to please hand over our dear session person, his memento, please. Thank you, Mishra ji. Very much appreciate your cheering the panels for us over the years and now. Ladies and gentlemen, we are running late royally, so we need to switch a bit. We did it intentionally because people did take a little time to show up in the morning, and we did not want the speakers and you not to hear the speakers, the first speakers that were there, so we waited. You got to help a bit, so the tea and coffee is already out. I would request you to quickly pick up your teas and coffees and come back. They will clean up for us, that's not a problem. The Geo team is very helpful, but kindly pick up your teas and coffees and be back 10 minutes maximum, and we will start at 12:20. The next session is extremely powerful. It is Innovations and Emerging Technologies in Rigid Packaging. We've got Miss someone who also had that Frankie's, no? He was heading some brand and he also had a separate business of Frankie's. I'm forgetting who it was. Mr. Tim Harp. Mr. Tim, yeah, absolutely. He was also from Kellogg's, is it? Yeah, so I worked with him in Unilever briefly. He was in Kellogg, but I was not there. He was, yeah. So है कुछ sir Kellogg में आपका कुछ competition होता है वहाँ पर cooking का Kellogg's? Absolutely, we have online entries as well. We invite people to give their choices what they consume in the breakfast, and we do a lot of things. They're happy to. Sir, next you guys to come, नहीं वो भी करना, but आप एक काम करना flexibles में. Little bit of new things that you're trying out ना, just give us a tester. Happy to do that. Happy to do that at counter over here. Absolutely, sir. Yeah, absolutely. Thank you so much. With that, we request our dear moderator, Swaran Singh Ji Grover, Director R&D Kellogg's, to hand over our panelists their momentum, please. Starting with to Mr. Saurabh Dhawan, the Director of SSF Plastics India Limited. Mr. Rajesh Iyer, the Senior Director for Sustainability and CSR from the Coca-Cola Company. Mr. Naveen Stewart, the Cluster Packaging Manager for Reckitt. Mr. Sanjay Goshaw, the Head of Packaging for Packaging Sustainability and Strategic Productivity for Diageo India. And Mr. Pradeep Kumar Pandey, President for Packaging Development from Nami Limited. And to hand over Mr. Swaran Singh his memento, I'm going to request none other than the President Plus India Foundation, Mr. Ravish Kamath, to please come on the dais. Of course, all of us are going to Plus India, which is from 5th of February to 10th of February at Delhi. We already have made all our plans, and Ravish, we are so excited to gain what Plus India exhibition has to offer to us and the world.
before we take a much needed tea, we are going to request for our session of perspectives of brand owners after the panel to please come on the dais. We got a little late. I know that coffee is much required, but we'll make it really, really fast. May I request our dear session chairperson, Rajesh Mishra ji, Director Packaging Development. George, CEO Bisleri International. So your actions are speaking louder than words. May we also hand over the momentum to Ashish Kulkarni, Lead Aromatics. Thank you very much. Ladies and gentlemen, we are going to come directly into the next panel discussion, which is the panel with our brand owners, and leading that is none other than Mr. Swan Singh Grover, Director R&D Kellogg's. May I request the panelists to please come on the dais and to hand over Amit his memento. May I request Mr. Mars Vardhanewala, Chief Marketing Officer, Constantia Flexibles, on the dais, please. Martin Panewala is a quality strong member of our Flexibles, which is coming on the 3rd and 4th of September, where we will be having over 2,500 delegates from over 30 countries. Please do join if you also want a little peek into the flexible part of our industry. Thank you for that bright note. The panelists, may I request Mr. Saurabh Dhawan, Director SSF Plastics India, Rajesh Ayapilla, Senior Director Sustainability NCR, the Coca-Cola Company, Naveen Stewart, Cluster Packaging Manager, Reckitt, Sanjay Ghoshal, Head of Packaging Sustainability and Strategic Productivity, Diageo India, and Mr. Pradeep Kumar, President, Packaging. How's the event happening and what's the progress in this? So thank you very much. The second day that is there for the 10th edition of the Injection of Blow Molding and PET International Summit is focused more on PET, recycling and blow molding. So the first day was on injection molding and sustainability, and the second day is on PET and blow molding and recycling. So what we are bringing for our audience this time for the day 2 is the artificial intelligence, which is the new thing that has come across, and it is touching every business, but especially in our industry, how artificial intelligence can increase the efficiency of our industry, whether it's production mein hai, nahi to it is in processing, it is in material. That is something very new that no one knows as of now. So we have found experts on that and brought it to our audience, how they can increase their profitability by using AI intelligence. Then talking about PET, as I explained even yesterday, that PET is like, the bottles, the Bisleri, all these people, they use PET. India is #1 in PET recycling in the world. So we had the Bisleri CEO come, and he shared with everyone that what all Bisleri is doing at international level और इंडिया में भी वो कैसे वो जितना बॉटल्स बाहर आता है ना पानी का उसको सब इकट्ठा करके हाउ डू दे काइंड ऑफ रिसाइकल इट एंड दे इंश्योर दैट आई थिंक आई एम नॉट श्योर 80% ऑफ द टोटल पीईटी इज़ रिसाइकल्ड. तो वो अपना जो प्रॉब्लम आता है, लोग बोलते हैं कि बाहर सब प्लास्टिक है, रोड्स पे प्लास्टिक है, गाय प्लास्टिक खा लेती है, फ़िश जो होती है अपना उनका स्टमक से प्लास्टिक निकलता है, वो सब लोग उसको ऐसे उनके प्रोसेसेस हैं जो वो सबको उन्होंने बताया कि हाउ मोस्ट ऑफ द बॉटल्स दैट गो अवे वो उनको कलेक्ट करते हैं. सो द बेस्ट थिंग दैट दे सेड इज़ कि अगर किसी चीज़ से वैल्यू मिले तो वो वेस्ट रहेगा ही नहीं. So they have showed ways how they can collect and उसी का business model बन के they can earn money. There is a very very famous worldwide renowned person called Chris D'Armit. उन्होंने presentation वीडियो के अकॉर्डिंग दिया and वो presentation से जो myth है कि plastic is the most devil एकदम null and void हो जाता है, because he has shown with the lot of research that has gone in and lot of facts and figures that
the plastic waste is something which is not what the world is making out to be. So आप चाहेंगे तो हम आपको लिंक भी देंगे उसका. It is an eye opener. मतलब worldwide it is supposed to be the best, and that we shared with our audience, and it was like really हमको जो कोई बोले कि कोई देखने में दिखता है कि प्लास्टिक गिरा, ये हमारी बॉडी के अंदर प्लास्टिक आता है, उससे एकदम फैक्ट्स एंड फिगर से मिथ क्लियर हो जाता है. दैट वी शेयर्ड विद आवर ऑडियंस. देन वी ऑल्सो हैव द न्यू टेक्नोलॉजीज़, क्योंकि थोड़ा छोटा होता है ना वॉल्यूम, गाड़ी का वॉल्यूम बड़ा होता है, हमारी चीज़ों का वॉल्यूम छोटा होता है. सो एक अलग से वर्टिकल है कि उसका सप्लाई चेन कैसा होता है, पूरा उसकी लॉजिस्टिक्स कैसे मैनेज होती है फ्रॉम द फैक्ट्री राइट टू द कस्टमर. सो उसके एक्सपर्ट्स ने आके दे काइंड ऑफ एक्सप्लेन्ड. देयर वर कंपनीज एंड हेड्स फ्रॉम कोका कोला, रैकेट बेन काइजर, डियाजो, इमामी, ये ब्रांड ओनर्स ने आके दे शेयर्ड. एक बहुत अलग सी बात है कि हम सब बोलते हैं कि रिसाइकलिंग और सस्टेनेबिलिटी होनी चाहिए. What is the effective way of doing it in a cost effective way? That we have to get recycling also, but how do we manage the cost? तो वो एक सेशन बहुत इंटरेस्टिंग था कि सस्टेनेबिलिटी वर्सेस कॉस्ट, मतलब मुर्गी पहले आएगी कि अंडा पहले आएगा, उस तरीके से दे वर एबल टू एक्सप्लेन टू द ऑडियंस. बिकॉज ये सब कंपनीज जो हैं, एक फ़ायदा इसका ये है सर कि ये इंटरनेशनल कंपनीज होती है ना. यूरोप वगैरह में सस्टेनेबिलिटी आप सब, जापान, यूरोप में सब आप जानते हैं कि सब अपने घर से ही उठा के अलग अलग करते हैं, हम लोग नहीं करते. उनका कल्चर में है ये. सो उनकी जो कंपनीज है, दे काइंड ऑफ शेयर्ड विद इंडिया दैट व्हाट वी शुड डू सो दैट वी आर एबल टू डुप्लीकेट देम. देन वी ऑल्सो हैव द, ये हमारा पीटी हो गया. देन इज़ द ब्लो मोल्डिंग, ये अलग टेक्नोलॉजी है. जो आपके बड़े वाले ड्रम्स होते हैं ना घरों के ऊपर जो लगे होते हैं, जो ब्लो मोल्डिंग, जो बड़े वाले कंटेनर्स होते हैं, ब्लो मोल्डिंग, एंड ऑल्सो ऑल दीज बॉटल्स एंड ऑल. वी हैव द लेटेस्ट टेक्नोलॉजी ऑफ ब्लो मोल्डिंग दैट वी ब्रॉट. वर्ल्ड के बेस्ट कंपनीज हैं. सीपा है, दे हैव कम फ्रॉम इटली. वीव गॉट सैकमी फ्रॉम जर्मनी. वीव गॉट बैंकॉक से AGR आए हैं, उनके हेड्स आए हैं. दे आर एक्सप्लेनिंग कि जो मशीन होती है ना, जो टेक्नोलॉजी होती है, व्हाट इज़ इट. इतने टाइम सर मशीन ऐसी, आपका म्यूज़िक सिस्टम है, हर एक महीने में नया मॉडल आ जाना है. आपका फ़ोन है, हर एक मॉडल में कुछ ना कुछ नया ही आएगा, तभी आप नया लोगे. उस तरीके से जो मशीनरी में लेटेस्ट टेक्नोलॉजी वर्ल्ड वाइड हो रही है, दैट वी ब्रॉट टू आवर कस्टमर्स हियर सो दैट दे आर एबल टू नो कि वर्ल्ड की बेस्ट चीज़ उनके डोर स्टेप पे इंडिया पे अवेलेबल है. दैट इज़ व्हाट वाज द हेडिंग फॉर टुडे, विच इज़ आपने बहुत स्पेसिफिकली पूछा कि आज का हमारा पीटी और ब्लो मोल्डिंग में क्या था. देन देर इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग 2 पैनल्स जिसमें हमने रिसाइकलर्स को बिठाया साथ में. एक FSSI को जो फूड्स का जो स्टैंपिंग देते हैं ना, जो आपके बॉटल्स के ऊपर सब लिखा रहता है, ये जो आपका शैम्पू है या आपका जो क्रीम है वो कौन से डेट तक वैलिड रहना चाहिए, वो सब लिखा. उनके द हेड ऑफ द चेयरमैन हैज़ कम एंड दे आर गोइंग टू शेयर कि प्लास्टिक पैकेजिंग इंडस्ट्री है ना, उनको क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए सो दैट द कंज्यूमर के एंगल से वो देख के बताएंगे. वी हैड द नीति आयोग डायरेक्टर कम इन. ही इज़ एन एक्सपर्ट ऑन MOEF से आए हैं डॉक्टर सत्येंद्र कुमार जी. ये जो पॉलिसी गवर्नमेंट निकालती है ना सर, कि आपका जो प्लास्टिक जो है, आपने सुना होगा कि थैले नहीं, झापला बैग होते थे, वो बंद हो गए थे ना, कि इतना माइक्रो से. दे हैव कम इन से कि गवर्नमेंट क्या रूल्स एंड रेगुलेशंस निकाल रही है ताकि कंज्यूमर का बेनिफिट हो, ताकि एनवायरनमेंट भी ठीक से रहे, सफाई भी रहे, जो आपके सब म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशंस होते हैं, एंड कंज्यूमर का बेनिफिट. तो ही हिमसेल्फ हैज़ कम एंड ही गेव द की नोट इन द मॉर्निंग. एंड जो रिसाइकलर्स और ब्रांड ओनर्स और जो लोग बनाते हैं, सब एक पैनल पे आके एक दूसरे से डिस्कस करा उन्होंने कि हमें ये तकलीफ़ आती है. रिसाइकलर्स बोलते हैं कि आपका जो प्रोडक्ट आता है वो इसमें बराबर क्वालिटी नहीं होती है, या व्हाट इज़ दैट द डिमांड. जो ब्रांड ओनर होता है वो बोलता है कि जो आप हमें देते हो बहुत हाई कॉस्ट पे देते हो, मैं तो नहीं लूँगा, मैं तो कंज्यूमर को आगे दे दूँगा. जो मशीनरी वाले वो बोलते हैं कि हमारी तो मशीनें पुरानी लगी हुई हैं, अब आप बोल रहे हो कि रिसाइकलेट डालो उसके अंदर, तो मशीन वो प्रोसेस नहीं कर पाएगी, तो आप हमें इस तरीके से दीजिए कि रिसाइकलेट भी हो जाए. सो सबको एक साथ पैनल में करके द इंडस्ट्री, ताकि इकट्ठे, एक आगे भाग जाएगा एक पीछे रह जाएगा तो हो नहीं पाएगा. तो एवरीवन हैज़ टू तारतम्य में जाना है सबको, एवरीवन हैज़ टू मूव टुगेदर. तो ऑल द वर्टिकल जो हमारे प्लास्टिक इंडस्ट्री एंड पैकेजिंग इंडस्ट्री का है, एवरीवन वी ब्रॉट टुगेदर. आप देखेंगे ऑन द सेकेंड डे ऑल्सो, आप शाम तक देखिएगा, एवरीवन विल स्टे. ये लोग मतलब बिकॉज इतना नॉलेज, इतना सबको जिसको बोलते हैं ना मंथन करके पूरा देने को कहीं मिलता नहीं है. सो आई थिंक गॉड हैज़ बीन वेरी काइंड. अटेंडेंस फुल है बिल्कुल, एंड वी हैव बीन एबल टू ब्रिंग द बेस्ट इन द वर्ल्ड फॉर आवर इंडियन इंडस्ट्री as well as the best thing that can happen for our economy as well as the consumers. It's the biggest summit in the world. That's about something you also talked about, something that is coming in Delhi. हाँ जी साहब. दिल्ली में भी कुछ आप करने वाले इसके आगे
हमारा दिल्ली में नहीं, हमारा 3rd-4th सितंबर को है वो। ये रिजिड था ना, मैंने आपको समझाया, ये रिजिड है, एवरीथिंग इज रिजिड। फ्लेक्सिबल सर हमारा आ रहा है 3rd-4th सितंबर को। उसमें ये भी दुनिया का सबसे बड़ा है वो सर। उसका लेवल ऐसा है कि हम आपको इनवाइट करेंगे, आप प्लीज़ आइए। 2,500 customers are there from 30 countries and मतलब the who's and who's of the world will be there। आप प्लीज़ मार्क करके रखिएगा, आप मिस ही नहीं करिए, कर ही नहीं सकते। 3rd and 4th सितंबर, ये आपको सिर्फ एक हॉल दिख रहा है ना जियो का, पूरा जियो बुकड है, पूरा ट्राइडेंट बुकड है, पूरा सॉफिटेल ऑलरेडी सोल्ड आउट। सॉफिटेल, ट्राइडेंट, एवरीवन हैज सोल्ड आउट बिकॉज 30 कंट्री। मतलब हमें तो कई बार सोच के भी लगता है कि हम करें भी थोड़ा सा इट्स स्कैरी कि एक जिम्मेवारी हो जाती है ना। अब हम प्राइम मिनिस्टर से पता नहीं आएंगे कि नहीं आएंगे, अगर वो आ जाते हैं हम कोशिश पूरी करेंगे, नहीं तो मिनिस्टर साहब तो आ ही जाएंगे, दे विल कम, क्योंकि वो एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है इंडिया के लिए। सर आप देखिए ये सारे जो कंट्रीज़ के CEOs आएंगे ना, 30 कंट्रीज़ के CEOs आएंगे, हमको उनको ये बोलना है कि आप इंडिया में फैक्ट्री लगाइए। हम क्यों आपका इंपोर्ट करके यहाँ बेच रहे हैं? यहाँ पर कंपनीज़ इंपोर्ट करके उन्हीं, आपका मैं एग्जांपल एक्स कंपनी है, उसका फैक्ट्री जर्मनी में है, वो अपना प्रोडक्ट यहाँ पर मशीन्स है यहाँ भेजती हैं और फिर यहाँ के लोग खरीदते हैं। हम उनको ये बोलने वाले हैं कि आप यहीं पर बनाइए वो मशीनरी, जब बेचना यहाँ पर है तो मशीन भी यहाँ पर बनाओ। उनका थोड़ा सा रहता है कि हम मतलब दैट इज़ व्हाट वी वांट टू टेल यू कि अगर उनको लगा कि इंडिया इज़ द प्लेस, तो सर हमारा जो मतलब कंट्री कहाँ अभी भी बहुत अच्छी, हम अच्छी जगह पे इंडिया में, वो अलग ही हो जाएगा सर। इतनी एम्प्लॉयमेंट होएगी। हम यहाँ पर बुला के क्यों, यहाँ CS की इम्पोर्ट होता है फिर बेचते हैं। उस कॉन्फ्रेंस से हमारा ये दैट इज़ गोइंग टू बी आवर एम दैट द पुश टू इंडियन इकोनॉमी एंड द प्लेसिंग ऑफ इंडिया इन दिस विल बी वर्ल्ड वाइड द बेस्ट। इतना सर कहाँ 2,500 पीपल इन दिस हॉल, ये एक हॉल है उसमें 3 हॉल होते हैं, मतलब 2,500 आएंगे नहीं, एंड ऑल द लीडर्स आर देयर एंड देन वील ऑल्सो गेट द मिनिस्ट्रीज, MOEF, DCPC, एनवायरमेंटल पीपल, सो दैट वो भी लोग आके अपना मैसेज दे सके, क्योंकि हमने जो बोलना है बोल दिया। अगर गवर्नमेंट वाले मिनिस्टर्स बोलेंगे तो उन लोगों को भी समझ आता है कि गवर्नमेंट को भी चाहती है, गवर्नमेंट की रेड टेप नहीं होगा, हमें परेशान नहीं करेंगे। होता है ना सर, पॉलिसीज़ में होता है ना, फाइल अटक गई, लाइसेंस नहीं मिला, वो सब उनको डर लगता है इंडिया से। तो वो अगर हमारे यहाँ से बड़े सीनियर मिनिस्टर बोल देंगे कि नहीं, हम अपने सब ऑफिसर्स को बोल के रखेंगे कि आपका फ़ायदा होगा, देन सर आई थिंक दैट वी आर एज इट इज़, आई फील दैट वी आर द बेस्ट, देन इट विल बी ऑन द ग्राउंड दैट वी आर द बेस्ट इन द वर्ल्ड। 3rd-4th सितंबर है, ग्लोबली द लार्जेस्ट समिट। मुझे नहीं लगता है कि 2,500 लोग किसी भी कॉन्फ्रेंस में वर्ल्ड वाइड कहीं भी होते हैं। पर इस समिट में प्लास्टिक रिसाइकलिंग के बारे में आपने चर्चा किया है। हाँ जी साहब। लेकिन अभी हर साल में वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे अभी हुआ ना पीछे। हाँ, तो इसकी थीम है नो मोर प्लास्टिक, क्योंकि प्लास्टिक के कारण जो पार्टिकल्स होते हैं छोटे माइक्रो वो आपने बोला सर, वही मैं ना अभी इस मीटिंग के बाद ना आपको एक लिंक फॉरवर्ड करूँगी, मैं वो आपके ग्रुप में डाल देती हूँ। सिर्फ 10 मिनट लगा के सर सुनिएगा। ये जो मिथ है ना, मैं तो इस इंडस्ट्री की हूँ, लेकिन ग्लास है, पेपर है, उसके बाद उनकी जो लॉबी है ना सर, वो बड़ी बड़ी कंपनीज होती हैं। हमारे यहाँ पर छोटी छोटी कंपनीज बहुत हैं, इंडस्ट्री छोटी छोटी कंपनीज, वहाँ 5-6 कंपनीज हैं वो बहुत बड़ी है, JK मैं नाम नहीं लेती, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज, तो उनकी लॉबी होती है सर। तो या तो पैकेज होगा ग्लास में या प्लास्टिक में, पैकेजिंग या पेपर में होगी या प्लास्टिक में होगी, तो उनकी लॉबी बहुत बड़ी है सर। वो मतलब दे आर द पीपल हु वॉट इट। आप वो लिंक सुनिएगा सर, तो आप देखिएगा कि आपका कोई भी प्रश्न जो आंसर ना हो, लिखित रूप में मैं बोल सकती हूँ। हमारी आई एम वेरी, मेरे को एक्चुअली कैसा लग रहा है, वो आने वाले हैं फ्लेक्सिबल में भी आके बोलने वाले हैं। आप देखिएगा सर, उससे एकदम से जो दिमाग में रहता है ना, लोग बोलते हैं अरे अंदर प्लास्टिक पिया तो स्टमक के अंदर प्लास्टिक रह गया, ऐसा कुछ रहता है ना, ये जो मिथ्स रहती, सब क्लियर हो जाएगा सर। थैंक यू सो मच। आपने हमें अपना समय दिया, धन्यवाद है। अभी तो एक्चुअली ना व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, खाने का भी टाइम हो गया, आप खाना ही खा के जाइएगा, पर इसमें लगेगा अभी 40-50 मिनट और लगेंगे। प्लीज़ आप खाना खा के जाइएगा, एंड थैंक यू सो वेरी मच।